Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss phylum Arthropoda. Let's come to the introduction of phyla. Arthro mean jointed and poda mean legs. The member of these phyla have jointed legs. It is the first largest animal phyla. जितने भी हमारे पास इनवर्टिब्रेट के फाइला हैं सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइला आर्थ्रोपोडा का है। अगर हम इसके नंबर की बात करें तो हम कहते हैं कि 2/3 ऑफ द टोटल एनिमल kingdom phyla, approximately 84% species of discovered species are belong to phylum Arthropoda and these members have jointed legs। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि इनके जो members हैं उनकी jointed legs होती हैं और एक और इनके अंदर एक quality होती है कि ये दूसरे मेंबर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो ये है कि इनके पास काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन मीन कि बॉडी के बाहर जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं और ये काइटिन से बना होता है। लुक एट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फर्स्ट कैरेक्टर इज बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी बॉडी की बात करें तो हम कहते हैं कि इनका जो बॉडी प्लान है वो है ट्यूब विद इन अ ट्यूब। अब ये राइट साइड पे आपको एग्जांपल दी गई है ये लॉबस्टर की। इसकी बॉडी आप देखें तो ये एक ट्यूब लाइक बॉडी है और इसके अंदर ट्यूब का क्या मतलब है, इसके अंदर ट्यूब का ये मतलब है कि इसके अंदर एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक या गट पाई जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमने सारे फाइला देख लिए, पोरीफेरा में हमने बोला कि उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, देन उसके बाद निडेरियंस आ जाते हैं जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, देन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फिर जब हम आर्थ्रोपोडा तक आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज द मोस्ट advanced type of organization. Then we have body wall. Their body is triploblastic, mean their body has ectoderm, endoderm and mesoderm. Then we have symmetry. Symmetry is the arrangement of body parts around the central axis. So their body is bilateral, mean their body can be cut into two equal halves. If we look at the example of lobster here, we can cut the body of lobster into two equal halves, left and right side. Then we have coelom. They have true coelom and the method of formation of coelom is schizocoelom. Then in advanced phyla we will also study the enterocoelom, which is another method of formation of coelom. So here you can see different examples of the phylum Arthropoda, different members which belongs to the phylum Arthropoda. Here you can see bugs, butterflies, lobster, all these members belong to phylum Arthropoda. Okay, now we will discuss general characters of the phylum Arthropoda one by one. So first and the most important character is exoskeleton, and it is the most advanced character and responsible for their success. So Arthropoda is the most successful phyla. I already have discussed that among all the phyla the most successful phyla is Arthropoda, and the reason behind is their exoskeleton. They have the non-living cuticle exoskeleton which is made up of chitin and is a type of polysaccharide which prevent them from water loss. So their skeleton is basically covering it and is preventing from the predator as well as it preventing the water loss from their body. So it is the most important feature of the phylum Arthropoda. So it also provides the structural support. Then we have metamerism. Metamerism means their body is divided into different regions or segments. For example, here their body is divided into head, thorax and abdomen. अगर यहाँ पे मैं आपको जनरल सा स्ट्रक्चर बना के बताऊँ एक इंसेक्ट का, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि दैट दिस इज हेड रीजन, दिस इज thorax and this is abdominal region. So their body is divided into basically 3 regions. And then we have the tegmatization. Tegmatization is nothing but the regional specialization. We can say that the head region is specialized for one particular function, then thorax has its own particular function and abdomen is modified for its own
specific functions. So all three regions have their own specific regional specialization, which is known as stegmatization. Now we have another process known as the sclerotization. This is nothing but the tanning process in which the layer of protein is chemically cross-linked with each other. So in the formation of their cuticle, there is a process known as sclerotization in which the protein layers interlink with each other. Then we have ecdysis. Ecdysis is the periodic shedding of exoskeleton for growth in arthropod. अब जो आर्थ्रोपोड का स्केलेटन होता है, आपको पता है कि वो नॉन लिविंग होता है. अब ये एक स्ट्रक्चर है किसी भी इंसेक्ट का, इसके ऊपर एक लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है, इसका एक एक्सोस्केलेटन होता है जो कि नॉन लिविंग होता है. अगर ये नॉन लिविंग है तो अगर इस इंसेक्ट को अपना ग्रोथ साइज इंक्रीज करने से ग्रोथ करनी है तो क्या ये नॉन लिविंग जिसके ऊपर एक्सोस्केलेटन है उसमें खुद को बढ़ा सकेगा? नहीं बढ़ा सकेगा. इसके लिए इसे क्या करना होगा कि ये जो इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन है उसे तोड़ना होगा, उसे तोड़ के उससे बाहर निकलना होगा और फिर अपने ऊपर दोबारा से एक्सोस्केलेटन बनाना होगा. तो ये जो टाइम वाइज पीरियोडिक शेडिंग होती है देयर एक्सोस्केलेटन की, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्डाइसिस. और ये जो शेडिंग होती है उसे बोला जाता है मोल्टिंग. तो मोल्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर दी growth of arthropods. Now we have metamorphosis. This is the radical change in the body form and physiology, and from immature larval stage to adult is called metamorphosis. अब जो हमारे पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है उसमें क्या होता है कि जब भी कोई एग होता है, एग से डायरेक्ट अडल्ट नहीं बनता, उससे अडल्ट नहीं बनता, उससे क्या बनता है, उससे एक लार्वल स्टेज बनती है जिसे हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एग से डायरेक्ट अडल्ट ना बने बल्कि बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज हो, लार्वल स्टेज हो और डिफरेंट लार्वल स्टेजेस हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. कि जो न्यू बॉर्न होता है वो बिल्कुल अपने अडल्ट के जैसा नहीं होता. यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल दिखाया गया है कि जिसमें सबसे पहले आपको एक एग दिखाया गया है. एग से एक लार्वल स्टेज आती है जिसे कैटरपिलर कहा जाता है. तो ये कैटरपिलर आप देख सकते हो कि जो बटरफ्लाई से रिजेंबल नहीं करता, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है. उसके बाद एक और स्टेज होती है क्राइसैलिस. उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्राइसैलिस बोलते हैं. बेसिकली ये क्या है, एक प्यूपा है. उसके बाद क्या होता है कि प्यूपा से अडल्ट जो है वो इमर्ज करता है और फिर जो अडल्ट होता है वो बेसिकली बटरफ्लाई होती है. जो कैटरपिलर होता है वो अडल्ट नहीं होता. आर्थ्रोपोड्स हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है कि जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे एंड करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो इसकी जो गट होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, उसको हम 3 रीजन्स पे डिवाइड करते हैं. फोर गट जो कि फ्रंट पे होती है, मिड गट जो मिडल होती है एंड हाइंड गट जो पीछे की तरफ होती है. तो ये माउथ से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है. देन वी हैव ईसोफेगस. ईसोफेगस के बाद आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हो, क्रॉप. क्रॉप क्या होता है? क्रॉप बेसिकली एक स्टोरेज ऑर्गन होता है जो कि फूड को स्टोर करता है. देन वी हैव गैस्ट्रिक सीकी. इनका काम क्या होता है कि ये जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो उसकी जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है. देन वी हैव हाइंड गट. हाइंड गट के बाद आप देख सकते हो रेक्टम एंड देन एनस. तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड करता है. अब यहाँ पे एक हाउस फ्लाई है, उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है कि इसका फोर गट होता है. देन वी हैव क्रॉप, मिड गट. मिड गट के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हाइंड गट है. जो मिड गट है यहाँ पे आपने देखा होगा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जहाँ से निकल रही हैं, राइज हो रही हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बोला जाता है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं इनमें. अब इनका क्या काम होता है कि बॉडी में जितना भी एक्सक्रीटा प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी में जहाँ जहाँ सारा एक्सक्रीटा प्रोड्यूस हो रहा है तो ये मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, इस एक्सक्रीटा को कलेक्ट कर देंगी और कलेक्ट करके यहाँ पे हाइंड गट में ले आएंगी और हाइंड गट से यहाँ से एनएस से वो एक्सक्रीटा बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा. देन वी हैव रिस्पायरेटरी सिस्टम. अब जो बेसिकली हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ब्लड के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को. लेकिन हम इंसेक्ट की बात करें तो इनमें कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता इनके ब्लड में जो कि गैसेस का एक्सचेंज करे. तो इनका जो ब्लड होता है वो रेड नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता. इनका ब्लड कलरलेस होता है. तो इनमें रिस्पायरेशन के लिए एक सिस्टम होता है जिसे बोला जाता है ट्रैकियल सिस्टम.
ट्रैकियो सिस्टम में क्या होता है कि इनका जो एब्डोमेन होता है, यहाँ पे होल्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे होल्स दिखाई गए। इन होल्स को क्या बोला जाता है? इन होल्स को बोला जाता है स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्यूब्स जो है बॉडी के अंदर जा रही हैं, जिन्हें की बोला जाता है ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया फिर क्या करेंगी? ट्रैक्यूल्स में कन्वर्ट होंगी, और ये ट्रैक्यूल्स जो हैं जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्हें डायरेक्ट सप्लाई करेंगी ऑक्सीजन की। तो एक तरह से ये डायरेक्ट होम डिलीवरी हो जाती है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लड का कोई रोल भी नहीं है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन वी हैव नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आप देख सकते हो कि आपको एक कॉकरोच का नर्वस सिस्टम दिखाया गया है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है आर्थ्रोपोडा का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुप्रा ब्रैंकियल गैंग्लियन दिखाया गया। गैंग्लियन क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन और दी सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सुप्रा इसोफेगल का मतलब है कि इसोफेगस के ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे गैंग्लियन प्रेजेंट है, और ये गैंग्लियन आप देख सकते हो कि बॉडी में जगह जगह गैंग्लियन प्रेजेंट है। दीज आर द एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन। और ये जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो होता है वेंट्रल। वेंट्रल का क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी इनवर्टिब्रेट की डायसेक्शन कर रहे हो तो आप सारे सिस्टम जब उसके निकाल देते हो तो नीचे वाली साइड जो वेंट्रल साइड है वहाँ पे जो एक सिस्टम रह जाता है वो कौन सा सिस्टम है? वो है नर्वस सिस्टम रह जाता है। लेकिन जब आप वर्टिब्रेट्स की बात करते हो तो उनका जो जब आप वर्टिब्रेट्स की बात करते हो तो उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल होता है, ऊपर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। नाउ वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का जो रोल है वो गैसेज एक्सचेंज में तो नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर और जो न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट हो रही है उसमें तो इसका बेसिकली फंक्शन होगा ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इंसेक्ट की बॉडी है इसमें डिफरेंट चैम्बर्स दिखाए गए हैं, जिन्हें ऑस्टिया बोला जाता है। तो इनमें मोर देन 4 चैम्बर हार्ट होता है। जिस तरह कॉकरोच की बात करें तो उसमें 14 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स के बाद यहाँ पे एक एओर्टा होता है जो कि सारे चैम्बर से ब्लड को कलेक्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे फाउंटेन की तरफ बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो चला जाता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनकी सप्लाई करता है। ये आज के लेक्चर में हमने जनरल बात की, जनरल इंट्रोडक्शन देखा आर्थ्रोपोडा के। आर्थ्रोपोडा होते क्या है, उनके अंदर कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनकी डिफरेंट क्लासेस देखेंगे और उनके सिस्टम्स को डिटेल से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।